Hello guys, welcome to my channel. I hope you all are doing good. So today I'm going to discuss about a book which I completed, um, and this is Think and Grow Rich by Napoleon Hills. So in fact, I completed. This is the second time I completed, and I would suggest the youngsters, who are completing their graduation, or even if engineering or MBA or any graduation kind of thing, and who are ambitious, they should read this book time and again. It's not about Think and Grow Rich is not about money only. It's about including money. It's all about uh, getting enough so it's not about only money matter kind of thing. So the word riches is here used in its broadest sense. You talk about financial, you talk about spiritual, mental, and material also. You want to get something life, like you want to to get something in spiritual practices. So there are 16 formulas in these, 16 topics and 60 formulas in this will help you. You want to get the financial gains, and you want to secure your future in terms of money, or even if investment, anything. So this will help you. You want to be a super duper manager, or you want to excel in the management area. This will help you. Even if in terms of health, mentally or physical fitness, this will also help you. What I'm going to do is, what I'm going to talk about is the last two chapters, chapter 15 and chapter 16. Something is something extraordinary facts have been written here. So as you can see, how to outwit the 6 ghosts of fear. And in fact, I have written there, and the translation of outwit. Outwit is to gain an advantage over somebody or something by doing something clever. That's outwit. Now, what are these 6 basic fears? And in fact, I have not got these things in any other books. That's why I'm just talking about this books. And including 6 fear, the 7th fear also he has written, which is the devil's workshop. And when I went through all these fears, small chapter, just one page kind of thing, you don't believe, I realized that I should have read this book much earlier, during my youth. This is something, he has written it. It's a kind of experiments, or even if, he has talked to a lot of people worldwide, and he has put all those facts one by one, which is true. Exactly. So I realized it. Let me tell you what he says, that these 6 basic fears, sometimes they remain hidden in the subconscious mind, where they are difficult to locate and still more difficult to eliminate. And what are those fears? The fear of poverty, the fear of criticism, the fear of ill health, the fear of loss of love of someone, the fear of old age, and the fear of
death. So he has all other fears are of minor importance and can be grouped under these six headings. Including that, what he has, the seventh one he has mentioned is, which he mentioned is that the devil's workshop. Like, we have a saying that an idle mind is a devil's workshop. So the devil's workshop is how to protect yourself against negative influences. So let me explain you in just 1 minute for this fear. So what he says that the fear of poverty. हम ऐसे ही डर जाते हैं कि हम निधन हो जाएंगे या फिर हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, हम गरीब हो जाएंगे, ये नहीं करेंगे या फिर पैसा नहीं बचाएंगे, 2 पैसा नहीं कमाएंगे, या नौकरी करने के बाद 2 पैसा नहीं कमाएंगे तो हम गरीब हो जाएंगे. हमेशा इंसान की दिमाग में एक डर रहता है कि वो गरीब हो जाएगा. और गरीबी जैसे सिर्फ हमारे देश में नहीं, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जो गरीबी है, अगर आप ढंग से आप देखो, स्पेशली यू टॉक अबाउट अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, 2 वक्त तो क्या, 1 वक्त भी रोटी भी उनको नहीं नसीब नहीं होता है. वो गरीबी का एक डर रहता है आदमी के मन में. और वो जो फियर ऑफ पॉवर्टी जिसको कहते हैं, वो ऐसा है कि इफ यू डोंट थिंक अबाउट दैट, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड. इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड. आपके दिमाग में ये है कि मैं ये नहीं करूंगा तो गरीब हो जाऊंगा. बट फैक्ट इज, आपको सोचना नहीं चाहिए कि मैं ये नहीं करूंगा तो गरीब हो जाऊंगा. सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आपको करना क्या है. So you talk about the spiritual practice, as I have told in previous my videos. Get up early in the morning, do some exercise or run, listen to the motivational speeches kind of thing. If you practice all these things, or even if you practice the 16 formulas he has written in this, you should get rid of the fear of poverty. So that is he has mentioned that the fear of poverty is without doubt the most destructive of the 6 basic fears. उन्होंने ये भी लिखा है कि the fear of poverty grew out of the human tendency to prey upon others economically. एक दूसरे को जो गला काट के मारते हैं ना, उसी टाइप का फिर इंसान बन जाता है करने के लिए. Nearly all animals lower than humans are motivated by instinct, but as their capacity to think is limited, they prey upon one another physically. He talks about the animals. Now humans, with their superior sense of intuition, with the capacity to think and to reason, do not eat other humans bodily. They get more satisfaction out of eating them financially. वो ये कहना चाहता है कि कुछ लोग इसमें हैं जो देयर मनी मैडनेस जिसको कहते हैं, पैसा कमाना है तो वो किसी हालत में दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं. और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डर के माफी कि हम कल हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, गरीब हो जाएंगे, वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं. सो दैट्स अबाउट फियर ऑफ पॉवर्टी. सो सिम्टम्स उन्होंने दिया है कि इनडिफरेंस, इनडिसीशन, डाउट, वरी, ओवरकशन, प्रोक्रास्टिनेशन, जो टालमटोल जिसको कहते हैं, हम टाल देते हैं, आज नहीं किया कल करेंगे. These are some of the symptoms of fear of poverty. And then the fear of criticism. This is a small one. Sometimes it happens कि आप जब क्रिटिसाइज किसी को करते हो उसे बुरा लगता है. तो जैसे मैं हूँ और मुझे अगर क्रिटिसाइज कोई करता है तो मुझे बुरा लगता है. उस डर से
मैं आ, कुछ कर नहीं पाता हूँ, किसी को कुछ बोल नहीं पाता हूँ, शायद कोई मेरा क्रिटिसाइज कर दे। मैं कुछ कुछ करने के लिए जा रहा हूँ, कुछ स्पेशल स्टेप्स लेने के लिए जा रहा हूँ, वेदर आई स्टार्ट माई स्टार्टअप कंपनी और इवन इफ समथिंग एल्स, बट इफ द वर्ल्ड विल क्रिटिसाइज मी, वो डर रह जाता है मेरे दिल में। वो होता है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। सो देन like employers who understand human nature get the best there is out of people, not by criticism but by constructive suggestion. जैसे मैं एक लीडर हूँ और मेरे जो टीम है, मैं उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। अगर मैं हर एक आदमी को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दूंगा, सो दैट्स अ काइंड ऑफ destructive suggestions kind of thing. So instead of that, if I don't criticize them, I suggest them something, constructive suggestion kind of thing, they will be motivated. Even if ये भी कहा गया है, इसमें लिखा गया है कि हम खुद को बच्चों को भी क्रिटिसाइज मत करवाओ। वो हो जाते हैं, मतलब अपसेट हो जाते हैं उस पर। दैट्स अ फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। फियर ऑफ इल हेल्थ, हम आगे जाकर बीमार पड़ जाएंगे, और बीमार पड़ने का मतलब ये है कि उसको और एक ढंग से हम सोचने लगते हैं, डेथ हो जाएगा। सो व्हाट ही सेज दैट ये इल हेल्थ से धीरे धीरे वहां तक वो डर रहता है कि मेरी डेथ हो जाएगी। दैट्स द फियर ऑफ इल हेल्थ। हमेशा डर रहता है कि मैं अगर बीमार पड़ गया, मेरे पास पैसा नहीं है वो ठीक करने के लिए, और कोई मुझे हेल्प भी करेगा या नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें फियर ऑफ इल हेल्थ के अंडर जाता है। उसके बाद होता है कि द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। जैसे कि आप किसी को बेइंतहा प्यार करते हैं, और अगर वो आपकी ज़िंदगी से हट जाता है, तो वो डर रहता है आपको कि आगे फिर कुछ लोग जैसे कि थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं, कोई करियर गंवा देता है, कोई स्टडी नहीं करता है, कोई घर बार छोड़ता है, उसी टाइप का होता है ये सब। सो वो डर रहता है कि अगर मैं किसी से प्यार कर रहा हूँ और अगर वो मेरी ज़िंदगी से हट गई तो मेरे साथ क्या होगा। ये होता है द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। एंड देन फियर ऑफ ओल्ड एज। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमें रिटायर होने का एहसास होता है। हम रिटायर होने के बाद क्या करेंगे, जो अभी एंजॉय कर रहे हैं जो नौकरी में, वो एंजॉय हम कर पाएंगे या नहीं। जो अभी हम पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा रिटायरमेंट के बाद मिलेगा या नहीं। मेरे जो फैमिली, मेरे बच्चे लोग या जो भी हैं, वो मुझे केयर करेंगे या नहीं रिटायरमेंट के बाद। ओल्ड एज का, और फिर रिटायरमेंट के जैसे 60+, 70+, 80+ होने के लिए जाते हैं, धीरे धीरे हमारा इल हेल्थ होगा और धीरे धीरे हम बूढ़े या ये होते जाएंगे, उम्र होता जाएगा। वो डर लगा रहता है हमेशा लोगों के बीच में। दैट्स द फियर ऑफ ओल्ड एज। एंड इवन इफ he has written that loss of freedom, loss of independence, even if loss of both physical and economic freedom. Physical freedom is one he has mentioned, like जैसे कि आपको डर लगता रहेगा कि मैं जैसे उम्र होता जाऊंगा, so I will be little bit down in sexually also. वो fear दिल में रहता है, वो होता है fear of old age. And then finally the fear of death, जो ill health से यहाँ तक आता है, ये हमेशा डर लगा रहता है। जैसे कि कोई मोटरसाइकिलिस्ट, वो निकलता है, उसे डर लगा रहता है। और अगर कोई एडवेंचरस एक्टिविटी करने के लिए जाता है, उसे भी डर लगा रहता है, या फिर उनके पेरेंट्स को डर लगा रहता है। ये जो चीज़ें हैं फियर ऑफ डेथ। बट द मोमेंट यू एक्सेप्ट डेथ एज नेचुरल, ये तो आने का ही, जब जैसे हम पैदा हुए हैं वैसे तो हम किसी दिन जाएंगे ही। सो वो अगर दिल में एक बार एक्सेप्ट कर लिया, देन वो फियर ऑफ डेथ हट जाता है। एंड एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर दैट one of the in one of the book like 5am Club and your Miracle Morning, जैसे कि आपका हेल एलरोड का वो मिरेकल मॉर्निंग में उन्होंने लिखा है कि he was dead for 6 minutes, 6 मिनट के तो वो दुनिया छोड़ ही दिए थे। बट इट हैपेंड समथिंग लाइक मिरेकल
He came back. You just read that book. He has mentioned it. So later on, he accepted that death. Someday the death will come. So why to worry about that? That fear of death. ये जो 6 fear है, उसके साथ साथ एक और उन्होंने बहुत आसान तरीके से लिखा है, जैसे कि द एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ ओनली 2 थिंग्स, एनर्जी एंड मैटर. अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर साइंस जो बचपन में हम स्कूल में पढ़ते हैं, 2 चीज़ से दुनिया बनी हुई है. सो दैट्स इन एलिमेंट्री फिजिक्स. वी लर्न दैट नीदर मैटर नॉर एनर्जी कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. कहते हैं ना, एनर्जी कभी लॉस नहीं होता है, मैटर कभी लॉस नहीं होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें से. जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो कोई बोल रहा है क्यों इतना बात करता है यार, एनर्जी लॉस करता है. सो ये एनर्जी लॉस नहीं होता है, एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू साउंड एनर्जी. सो ऐसे ही वो कहते हैं कि बोथ मैटर एंड एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड. सो लाइफ इज एनर्जी दैट हैज टू ट्रांसफॉर्म इनटू डेथ. सो यू एक्सेप्ट इट, नॉट टू फियर. ये सबके साथ देन एक आता है कि ओरीज होते हैं आपको. दैट्स अ स्टेट ऑफ माइंड. हमेशा हमें दिमाग में रहता है कि हर दिन जब आप घर से निकलते हो या फिर नौकरी पे जाते हो, कुछ ना कुछ हमको सताता है, कुछ ना कुछ सताता है. सो दैट यू नीड टू किल द हैबिट ऑफ ओरी, वो कहते हैं. और ये सारी चीज आप कर सकते हैं. एक, make the book your friends, the best friend. You get at least abundance of knowledge. And the second thing is get up early in the morning, do some exercise that particular time, and listen to motivational speeches. Be confident and positive. You will kill those हैबिट ऑफ वरी. आपको नहीं आएगा वो दिमाग में कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये आ रहा है, वो ये सब नहीं होगा. और जो लास्ट में उन्होंने बताया है कि द डेविल्स वर्कशॉप, विच इज द 7th बेसिक इविल, एंड ही हैज रिटन दैट हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस. और ये कैसे कर सकते हैं आप? He has written that it's only willpower. Willpower से ही इसको आप कर सकते हैं. वो कहते हैं ना कि चाणक्य नीति में किताब में एक श्लोक में लिखा गया है कि don't spend much time with people who are very sad. जो लोग हमेशा दुखी रहते हैं, उन दुखियों के साथ ज़्यादा टाइम मत गुजारिए. हाँ, थोड़ा सा जैसे कि कंफर्ट लेवल उनको देना है, उनके साथ शेयर करना है, थोड़ी देर तक रहिए, बट वहाँ से निकल जाइए आप. ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं. आई मीन वी फेस लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे कॉल यू, दे टॉक नेगेटिव थिंग्स. नाउ इन टुडेज सिनेरियो, इफ समबडी विल कॉल यू, ही विल से इन द पैंडेमिक सिनेरियो, वो गुजर गया, ये गुजर गया, इधर ये हो गया, उधर वो हो गया. बट इंस्टेड ऑफ दैट, दैट इज फाइन, बट इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू टॉक अबाउट हाउ मेनी पीपल हैव रिकवर्ड, दैट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड काइंड ऑफ थिंग. एंड अगेन मैं ये नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज उसने ये किया है, उसको ये हुआ है. ऑल दिस नेगेटिव थॉट्स, इवन इफ मैं तो ये कहता हूँ कि आई मीन जब मैं फ्लाइट पकड़ने के लिए जाता हूँ, कुछ लोगों को ये डर रहता है, अरे अगर ये नहीं हुआ तो मैं फ्लाइट मिस हो जाऊँगा, मिस हो जाएगा मेरा. बट मेरा कॉन्फिडेंस रहता है कि आई विल कैच द फ्लाइट, इवन इफ आई हैव I have also lost in time. Sometimes, I mean not many times, but couple of times that I miss my flight. But even if I'll be confident, but sometimes like एक सिनेरियो मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे कि दिल्ली से आते आते मुझे एक जगह में अटक गया और I was little bit worried कि क्या होगा, मेरा फ्लाइट मिस हो जाएगा. But after 10 to 15 minutes, I got an SMS from the airlines that the flight has been delayed. So you should be at least, self-confidence होना चाहिए.
विल पावर होना चाहिए, और नेगेटिव पीपल सराउंडिंग में नहीं रहना चाहिए आपको। आप उन्हीं के बीच में रहिए जो पॉजिटिव पीपल के बीच में रहिए। इवन उन्होंने एक जो चैप्टर में उन्होंने लिखा है कि आपको हमेशा एक एज्यूम करना चाहिए कि यू हैव बिन सराउंडेड बाय लॉट ऑफ पीपल वर्चुअली थिंक कीजिए कि सोचिए कि यू आर ए लीडर बट सराउंडेड बाय अदर लीडर्स ऑल्सो, लाइक हेनरी फोर्ड, उनकी कुछ अलग मैनेजमेंट पॉलिसी है। You are surrounded by a scientist like Isaac Newton. You are surrounded by one of the richest person like Bill Gates. You are surrounded by Abraham Lincoln, like a politician. इन सभी के अलग अलग तरीके होते हैं। सो आप जब लीडरशिप में बैठते हो, अगर ये लीडर्स आपके आसपास में रहते हैं, हर आदमी से आपको कुछ ना कुछ एक मिलता है टिप्स। ये सोचते रहिए हमेशा। सो यही सारे चीज़ लिखा गया है। एंड इन फैक्ट आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द बुक एंड स्पेशली दोज फियर्स एंड ट्राई टू एलिमिनेट दोज फियर्स। एंड जस्ट लाइक आई सेड दैट देयर आर टू वेज। वन इज always do some meditation kind of thing, or always do some running or exercise, or anything which is early in the morning, or maybe in the evening. Some people, they do exercise to get to shed the sweat. And again, I had told you in one of my video, make the sweat as your ornament. So पसीना बहाओगे ना, कभी कभी लोग एक्सरसाइज करते हैं या फिर दौड़ते हैं या फिर वॉकिंग करते हैं टू गेट रिड ऑफ द वरीज। एक वो है, दूसरा है किताब को अपने दोस्त बना लीजिए, यही आपको वो हेल्प करेगा। आई हैव गॉट द बेनिफिट, सो दैट्स वन ऑफ द रीजन आई एम एडवाइजिंग यू। सो ऑल द यंगस्टर्स, please make the books as your best friend and make the sweat your ornament. Thank you for watching me.